Assalamualaikum everyone. वालेकुम सलाम सर। जी क्या हाल है जी, खैरियत से? तो पेपर्स वगैरह जी आपके ठीक हो गए हैं सारे? यस सर। इतनी धीमी आवाज़ क्यों है जी? इसका मतलब ये है कि कुछ अच्छा नहीं है? नहीं सर, अच्छे हो गए। अच्छे हो गए, चलें, गुड। और स्टैटिस्टिक्स, बायो स्टैटिस्टिक्स का कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ सर। प्रोबेबिलिटी आता था। तो इसमें तीनों क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए आपने? किए तो है सर। क्योंकि जो जी, चूँकि जो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टू तो शायद आप लोगों ने ठीक है अटैम्प्ट किए होंगे। थर्ड वन में यकीनन प्रॉब्लम होगा मेजॉरिटी का। शायद कुछ ने आना किया हो, चूँकि मैंने अभी पेपर्स चेक नहीं किए, लेकिन होपफुली नेक्स्ट वीकेंड पे मैं आना चेक करूँगा तो अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने प्रोबेबिलिटी को किस अंदाज से लिया है। जी। एक तो मुझे आज अंदाज़ा नहीं था कि ऑनलाइन क्लास है। ठीक है, मैं तो क्लास में चला गया था और वहाँ से अभी पता चला कि आज जो है आज से क्लासेस ऑनलाइन हैं। तो मैंने आके फौरी तौर पे फिर ये आपको है ना लिंक पर सेंड किया। जी। सो लास्ट टाइम वी व्हाट वी वर डूइंग, आई थिंक वी वर solving few examples related to regression analysis. So I think this was the last example that we performed in the class. In this example, we were given some data and then we have to plot the data on a scatter plot. Then in second part, we have to fit the regression model. And in third part, we have to compute the value of R square. And I think already we solved this example. So that was a scatter plot, and then we fitted a regression line. We obtained two estimates in the form of A and B using this data. And finally, we got fitted regression line in the form of y hat equals to 147.5 plus 7.4x. So what does it mean by 147.5? This is the value of intercept. And intercept is the value of response variable, is the value of dependent variable in case of absence of independent variable, in case of without having any influence of independent variable. So whatever the value of dependent or response variable will be, in case if we are not using independent variable at all, then its value is 147.5. And if we are using 1 unit of independent variable, then there will be an increase of 7.4 against each unit of independent variable. So 7.4 is the value of regression coefficient. So regression coefficient is basically is the change in dependent variable, is the change in response variable in case we are increasing or decreasing 1 unit of independent variable x. तो अगर हम x के बगैर, x के इन्फ्लुएंस और उसके इफेक्ट के बगैर रेस्पॉन्स वेरिएबल की वैल्यू को देख रहे हैं, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट। और अगर हम अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक यूनिट इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो जो हमारे रेस्पॉन्स में जो चेंज आ रही है वो पर यूनिट 7.4 चेंज आ रही है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेग्रेशन कोएफिशिएंट। Then we computed the values of fitted regression line in the form of y hat. We just put the values of x inside that equation. For example, the first value of x is 5. We put 5 in the equation. Then again, we put 5 in the equation. Then at third point, there is a value of x which is 10 and so on. So we put the values of x,
different values of x in the model, and we obtained the values of y hat, 184.5, 184.5, and so on. If we are interested to get the error terms, then error term is equals to y minus y hat. We are representing error term by e, and e is actual values or original values of dependent variable minus fitted values of dependent variable. So the differences, we have minus 24.5, 35.5, and so on. And we have to keep in mind that some of errors, sometimes we call it residual. Residual or error, these are similar things. So sum of residual, sum of error will always be equals to 0. If we are taking square of each value of e, we are getting the values of e square. Why we are getting these values? Because we are interested to get the value of r square, and r square is the coefficient of determination. So to get the value of coefficient of determination, which we are representing by r square, and r square equals to 1 minus summation e square divided by summation y minus y bar whole square. Summation e square we will get from this table, which is 4710. Similarly, summation y minus y bar whole square, if you just open it, you will get summation y square minus summation y whole square. Just a moment. So maybe there was some problem last time in the computation of summation y minus y bar whole square value. So you can check it. So after putting values in the formula of r square, I think again there will be a problem in final value of r square. So you have to correct it. So whatever the value of r square will be, for example, right now we have the value of r square 96.80. This shows that shelf space, which is an independent variable, and it was given in feet. So there is a 96.80% role or contribution of this independent variable in weekly sales, which is given in dollars. तो अब आपने इसे याद रखना है कि जो आर स्क्वायर है ये कंट्रीब्यूशन बता रहा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इन रेस्पॉन्स वेरिएबल, कि रेस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर जो होने वाली चेंजेस हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से किस हद तक वो इफेक्ट हुआ है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसने रेस्पॉन्स वेरिएबल को ऑलमोस्ट 97% इफेक्ट किया है. जी, इज इट क्लियर जी? Yes, sir. Yes. जी. Last time I think we also discussed coefficient of determination theoretically. It was simply the ratio between explained variation and total variation. So remember, we divide the total variation in response variable into two parts. ठीक है, तो इस तरह याद रखें कि जो response variable के अंदर होने वाली changes हैं, ठीक है, उन्हें हम दो हिस्सों में सेपरेट कर देते हैं. ठीक है, और उसे एक तो नाम हम देते हैं टोटल वेरिएशन. यानी जब हम टोटल वेरिएशन लफ्ज यूज करते हैं, इट मींस टोटल वेरिएशन रिगार्डिंग रेस्पॉन्स वेरिएबल with respect to response variable. So this total variation will be equals to explained variation and unexplained variation. और आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्लेन्ड वेरिएशन रेस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर आने वाली वो चेंजेस या होने वाली वो चेंजेस विच आर ड्यू टू चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, यानी वो चेंजेस जो यानी
टोटल वेरिएशन से मुराद ये है कि रेस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर आने वाली होने वाली वो चेंजेस जिन्हें आपकी रेग्रेशन लाइन ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, या रेग्रेशन लाइन की मदद से वो वेरिएशन कैप्चर हुआ है, और वो वेरिएशन जो कैप्चर होने से रह गया है। देखें, रेस्पॉन्स वेरिएबल इज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ factors. So if we are considering just one variable, it means there are a number of other factors which are affecting this response variable, ठीक है, यानी रेस्पॉन्स वेरिएबल को एट अ टाइम कई वेरिएबल्स हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम किसी मजबूरी के तहत हम चंद वेरिएबल्स को या एक वेरिएबल को या दो वेरिएबल्स को जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हैं, हम उन्हें स्टडी कर रहे होते हैं कि हम उनका इफेक्ट देख रहे होते हैं कि वो किस हद तक रेस्पॉन्स वेरिएबल को इफेक्ट कर रहे हैं या उनका कंट्रीब्यूशन रेस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर टोटल वेरिएशन में है। तो वो वेरिएशन जो रेग्रेशन लाइन, चाहे वो हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया चाहे एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए, तो उनकी वजह से जो वेरिएशन एक्सप्लेन हुआ रेस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर, दैट इज एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हम किसी वजह से कंसिडर नहीं कर पाए और उनका इफेक्ट कैप्चर होने से रह गया, दैट इज कॉल्ड unexplained variation. As we said, R square or coefficient of determination is simply the ratio between explained variation and total variation. So we can write it as explained variation divided by total variation, and we can convert explained variation in the form of total variation minus unexplained variation divided by total varition. If you just individually divide the upper values by denominator, then total variation divided by total variation, you will get 1 minus unexplained variation divided by total variation. And unexplained variation is actually the variation that has not been explained by the regression line, and it will be in the form of error. So unexplained variation will be summation e square divided by summation y minus y bar whole square. And summation e square, in the previous example we have computed its value using fitted regression line, but we can also compute its value using the formula like summation e square equals to summation y square minus a summation y minus b into summation x y. So that was all about coefficient of determination. And now we will try to solve few examples related to simple linear regression. So if you just consider one of the data, I will write down that data here. Just a moment. Please write down an example on a page, and then we will solve it. So write down the statement. The following data are the rates of oxygen. जी ये जरा एग्जाम्पल जी साथ से जरा नोट कर लें आप. The following data are the rates of oxygen consumption of birds
measured at different environmental temperatures. So we are given oxygen consumption of birds. Along with that, we are given different temperatures, environmental temperatures. So remember, oxygen consumption will be a dependent variable, which is depending upon temperature, air temperature or environmental temperature. So that independent variable temperature will be represented by X, and its values are -18, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 5, 10, 15, and then 19. Oxygen consumption, which is response variable, and we are representing it by Y. Its values are 5.2, 4.7, 4.5, 3.6, 3.4, 3.1, 2.7, 1.8. I think one value is missing. 5.2, 4.7, 4.5, 3.6, 3.4, 3.1, 2.7, 1.8. Minus 15, 10, 5, 0, 5, 10. We don't have 15 in X. So these are the values of X and Y, where X is temperature and Y is oxygen consumption. And we have to fit a regression line. So to fit a regression line, we need the values of X, Y, X square, and Y square. So as a first part, just write down fit a regression model of oxygen consumption. Fit a regression model of oxygen consumption rate on temperature. On temperature. जी आपने जी नोट कर लिया जी ये? Yes, sir. जी इसी का जी सेकंड पार्ट नोट कर लें. Show that sum of residual is 0. Show that sum of residual is 0. That is summation within parenthesis y minus y hat equals to 0. तो मैं जी इसे सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ आर सॉफ्टवेयर, और आपने इसे मैनुअली सॉल्व करना है. ठीक है. या इसका हम ये भी कर सकते हैं कि चले मैं इसे आर की मदद से सॉल्व करता हूँ.
जी, तो आर की मदद से जब हम सॉल्व करेंगे, सो फर्स्ट वी नीड टू गिव द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई. So write down the values of x as x equals to c, to combine the values, to concatenate the values. Write down the values of x, for example, minus 18, then minus 15. Along with each value, there must be a comma. Minus 10, then minus 5, 0, 5, 10, and then 19. Y values 5.2, then 4.7, 5, 3.6, 3.4, 3.1, 2.7, लास्ट वैल्यू 1.8. जी, यहां तक जी क्लियर है? यस सर. जी, देखें आपको डाटा क्या गिवन था कि अगर जो एनवायरनमेंट के अंदर जो टेम्परेचर है वो माइनस में है या पॉजिटिव है, -18, -15, या 0 है या 5 है, पॉजिटिव साइड पे है, 10 है, 19 है. ठीक है, तो जो बर्ड्स हैं उनकी ऑक्सीजन कंजम्पशन वो कितनी है. ठीक है, तो वो हमें अगर आप चेक करें तो ऑक्सीजन कंजम्पशन जितनी टेम्परेचर माइनस में है तो उतनी ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा है, यानी 5.2 है, 4.7 है, एंड सो ऑन. और जितना टेम्परेचर पॉजिटिव साइड पे गया है उसका इफेक्ट क्या हुआ है ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ बर्ड्स पे, वो कम हुई है ऑक्सीजन कंजम्पशन. जिस तरह एंड पे अगर आप देखें तो टेम्परेचर था 19, लेकिन जो ऑक्सीजन कंजम्पशन थी दैट वाज 1.8. तो ये हमें एक उसके अंदर टेंडेंसी नज़र आ रही है. अब हम इस टेंडेंसी यानी जो वाई के अंदर टेंडेंसी है यूजिंग वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यूजिंग वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर, हमने वो एक रेग्रेशन मॉडल की शक्ल में उसे शो करना है. ठीक है जी, तो कोई मुझे बता दें जी कि हम मॉडल फिट करना चाहते हैं. चलें, मॉडल से पहले आपने यहाँ पर इसका स्कैटर प्लॉट जो है वो ड्रॉ कर लेना है. तो स्कैटर प्लॉट के लिए ज़रा मुझे बताएं कमांड क्या यूज़ करनी है. जी, प्लॉट. जी, ये मोहम्मद हमजा अली जी, ये आपके क्लास फेलो हैं. यस सर. जी, हाँ जी, बताएं जी. हमने इस डाटा को प्लॉट करना है स्कैटर प्लॉट के ऊपर. सो हाउ कैन वी डू दिस? व्हाट विल बी द कमांड? सर प्लॉट लिखेंगे सबसे पहले. ऊंचा बोलें जी जरा. सबसे पहले प्लॉट लिखेंगे. प्लॉट कमांड, देन वैल्यूज ऑफ एक्स कॉमा वैल्यूज ऑफ वाई. ठीक है, और सिंपली आप ये देखें, ये इसने डाटा को प्लॉट कर दिया. ठीक है, लेकिन अगर आपको इसके अंदर कोई कलर देना है देन यू कैन यूज फॉर एग्जांपल कलर्स, COL इक्वल्स टू, हम कलर्स के लिए नाम भी यूज कर सकते हैं या डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं, लाइक 1 2 3. ठीक है, 1 फॉर ब्लैक एंड 2 फॉर आई थिंक रेड. ठीक है, या इसी को अगर आप 4 करेंगे तो आई थिंक ब्लू. ठीक है, सो जी क्लियर है जी. सो दिस इज स्कैटर प्लॉट कि आपने सिंपली वैल्यूज ऑफ एक्स विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, जो आपके पास पेयर्ड वैल्यूज बनी हैं, उन्हें आपने ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर दिया. सो दिस डॉटेड ग्राफ इज कॉल्ड स्कैटर प्लॉट. आफ्टर दैट
व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फिट अ रेग्रेशन मॉडल। तो मैंने उस मॉडल को एक नाम दे दिया फिट का। और मॉडल फिटिंग के लिए याद रखें, वी यूज अ कमांड lm। lm स्टैंड फॉर लीनियर मॉडल। Inside you have to provide first dependent variable y, then there must be a tilde sign, and afterwards write down independent variable. If you have single independent variable, just write down that variable. If you have more than one independent variable, just add them. For example, अगर आपके पास first one है x1 independent variable, then x2 x3, write down x1 plus x2 plus x3। ठीक है जी, क्लियर जी? Yes, sir. जी ठीक हो गया। सो जस्ट एंटर नाउ। इफ यू विल राइट डाउन फिट, देखें आपको दो चीजें यहां पर उसने दे दी। पहला आपको नजर आ रहा है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वैल्यू इज 3.4714, और उसी के सामने इंटरसेप्ट के सामने अगर आप देखें x के नीचे वैल्यू आपको दी हुई है -0.08776। तो जो -0.08776 है, दिस इज वैल्यू ऑफ रेग्रेशन कोएफिशिएंट। और रेग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये शो कर रहा होता है कि x की वजह से, x का एक यूनिट इंक्रीज या डिक्रीज करने से रिस्पांस वेरिएबल के ऊपर क्या चेंज आ रही है। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेग्रेशन कोएफिशिएंट। और इंटरसेप्ट वैल्यू ऑफ a 3.47 राइट नाउ वी हैव। ठीक है, तो 3.47 ये आपको ये बता रहा है कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज ना करें या उसका इफेक्ट जीरो हो जाए, इवन देन रेस्पॉन्स वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 3.47। ठीक है जी। और दूसरी तरफ अगर हम एक एक यूनिट इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उसका इफेक्ट क्या होगा। अगर हम एक एक यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट होगा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और जो रेस्पॉन्स वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन कंजम्पशन, उसके अंदर -0.08776 की कमी होती जाएगी। यानी आप x का एक एक यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, देयर इज अ डिक्रीज of -0.08776 in the values of response variable। ठीक है, so this is the meaning of intercept and regression coefficient। and if you just write down summary of fit, आपने जो regression model fit किया उसका नाम आपने दिया fit, आपने summary अब उसकी लेना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करें। ठीक है, आपको यहाँ से एक और वैल्यू मिल जाएगी जो नीचे आपको देखें एंड पे नजर आ रही है, सेकंड लास्ट लाइन के ऊपर, मल्टीपल आर स्क्वायर्ड 0.9809। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन विच इज आर स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज 0.9809, या इसी को आप कह सकते हैं कि 98.09%। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है बर्ड्स की, उसके अंदर जो टेम्परेचर का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, ऑलमोस्ट 98% उनका उस चीज का कंट्रीब्यूशन है। जी क्लियर जी? यस सर। जी, और इसी के साथ आपको एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू भी दी हुई है। तो अमूमन जब सॉफ्टवेयर आपको देगा वैल्यू, तो आपको आर स्क्वायर की वैल्यू और एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू भी आपको प्रोवाइड करेगा। और एडजस्टेड आर स्क्वायर हमेशा याद रखें, आर स्क्वायर की वैल्यू से इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जाती है इसके फॉर्मूला के अंदर। तो मैं किसी टाइम आपको एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला भी बता दूंगा कि अगर आपके पास, if you have the value of r square, then how can we get the value of adjusted r square। ठीक है जी। तो एक ये एग्जांपल आप और जरा नोट कर लें, ये आपने प्रैक्टिस खुद से कर लेनी है जी। so write down given the following data, so write down the data in two columns. First column heading is water, amount of water,
Second column heading is yield. जी, तो अब आप खुद से अंदाजा कर लें कि चूंकि हम रेग्रेशन की बात करते आए हैं, कर रहे हैं, आपके पास एक तरफ अमाउंट ऑफ वाटर है, दूसरी तरफ यील्ड है. सो विच ऑफ द वेरिएबल विल बी इंडिपेंडेंट एंड अदर वन विल बी रेस्पॉन्स वेरिएबल? जी बता दें. Amount of water will be independent and Amount yield of will be water dependent. is an independent variable and yield of crop is a dependent variable or response variable. जी, amount of water जी नोट कर लें. 13, 19, 25, 30, 33, 42 and 56. और yield आप नोट कर लें. 2.30, 2.90, 3.05, 3.20, 3.45, 3.85, 4.25. हाँ जी, अब दोबारा अगर आप डेटा की तरफ एक नज़र दौड़ाएं, इससे आपको क्या अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे जैसे हम वाटर की अमाउंट को, वाटर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है यील्ड के ऊपर कि 2.30, 2.90, 3.05 एंड सो ऑन 4.25. It means there is a tendency of increase in yield because of increase in amount of water. तो जैसे जैसे अमाउंट ऑफ वाटर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यील्ड के ऊपर हमें नजर आ रहा है. ठीक है. So yield is a response variable. Water, amount of water is an independent variable. So first part, number one, plot the data on a scatter diagram. Plot the data on a scatter diagram. Number two, construct an equation of the line of regression. Construct an equation of the line of regression of yield of rice on water. तो अब आपने याद रखना है, जब भी हम कहेंगे, हम इस तरह लिखते हैं फिट अ रेग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x. ठीक है, क्या कैसे लिखते हैं हम? फिट अ रेग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x. हमेशा याद रखें कि जो ऑन से पहले होता है दैट इज रेस्पॉन्स वेरिएबल. ऑन के बाद एक या एक से ज्यादा जितने वेरिएबल्स होंगे दीज वुड बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स. ठीक है जी. तो हमने कहा जी कि रेग्रेशन लाइन फिट करें ऑफ यील्ड ऑफ राइस ऑन वाटर. ठीक है. सो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट, शो दैट सम ऑफ रेजिडुअल इज जीरो. शो दैट sum of residual is 0. Sum of residual equals to 0 mean summation E equals to 0. That is summation E equals to 0. Where E किसके इक्वल है जी बता दें? Where E equals to y minus y hat. Y किसके इक्वल? Y minus y hat की इक्वल है. और फोर्थ पार्ट इसका, कंप्यूट आर स्क्वायर. साथ ही आपने इसका आर स्क्वायर की वैल्यू भी कंप्यूट कर लेनी है, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाए कि यील्ड के ऊपर जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, वो कितना रोल प्ले कर रहा है यील्ड ऑफ राइस के अंदर. जी क्लियर जी? Yes, sir. ठीक है जी. तो यहाँ तक जी आपने टाइम बल्कि भी 5 मिनट हैं. एक एग्जांपल अगर आप और नोट कर लें. जी एक एग्जांपल और नोट कर लें. और आपने ये
after this example, this would be the end of this chapter, regression analysis. कल की क्लास में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है कोरिलेशन एनालिसिस हम वो स्टार्ट करेंगे फिर जी. One task is assigned to foresters is to estimate the lumber, LUMBER, lumber harvest of a forest. The description of variables is as, यानी वो क्या कह रहे जी, जो फॉरेस्टर्स हैं उन्हें एक टास्क दिया गया है कि वो जंगलों के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर जो क्या है जी, लकड़ी है दरख्तों की, ठीक है, उससे उन्होंने जो हार्वेस्ट की जाती है, ठीक है, उसे एस्टिमेट करना है. अच्छा, अब उसके लिए उसने क्या बताया जी कि जो वेरिएबल्स यूज किए हैं वो है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स इज HT, यानी दोनों कैपिटल आप लिख लें, कैपिटल H कैपिटल T, HT. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द हाइट इन फीट, जी, ये पहला वेरिएबल हो गया. दूसरा VOL, वॉल, इसके आगे लिख लें द वॉल्यूम ऑफ लंबर, और ब्रैकेट में, इसी के साथ ब्रैकेट में लिख लें ए मेजर ऑफ द यील्ड, ब्रैकेट क्लोज, इन क्यूबिक फीट, ठीक है. तो जो दरख्तों से लकड़ी आ रही है वो उनका जो वॉल्यूम है, ठीक है, किसी भी ट्री का, उसे वो वॉल के तौर पे यानी वॉल्यूम के तौर पे ले रहा है, और जो ट्रीज की हाइट है उसे HT से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है जी. नाउ राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ HT एंड वॉल इन 2 कॉलम्स. जी, पहला कॉलम HT का और सेकंड कॉलम वॉल, VOL. जी, HT 89, second value 90.07, third value 95.08, next 98.03, next 99, next 91.05, 105.60, 100.80, 94, and last value 93.09. Wall, next variable wall 25.93, 45.87, 56.20, 58.60, 63.36, 46.35, 68.99, 62.91, 58.13, 59.79. Number 1, estimate the relationship between wall and HT. Estimate the relationship between wall and HT. Second part, compute R square and interpret the result. Compute R square and interpret the result. जी,
तो यहाँ तक जी आपने ये तीनों एग्जांपल्स जो हैं इन्हें आपने सॉल्व कर लेना है, और कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे आपने डिस्कस कर लेना है। ठीक है, सर वॉल की सर जो आपने वॉल की वैल्यूज लिखवाई हैं उसकी नंबर 5 वाली वैल्यू क्या आती है? 63 पॉइंट। 63.36। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, ओके जी। जो अटेंडेंस है जी, पिछले दिनों की CRG किधर हैं? शिराज। शिराज आपने जी मुझे एक एक्सेल की शीट के ऊपर पिछले सारे दिनों की जो अटेंडेंस है, ठीक है, वो दे दें, या डेट वाइज जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं उनके रोल नंबर सिर्फ मुझे बता देने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज की अगर डेट है तो आज के दिन में जो जो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं सिर्फ उनके रोल नंबर्स लिखे हुए हों। ठीक है, तो जो पिछली जितनी भी क्लासेस हैं, अगर 20 क्लासेस हुई हैं तो 20 लाइंस के ऊपर 20 डेट्स के सामने सिर्फ एब्सेंट स्टूडेंट्स के जो रोल नंबर्स हैं वो मुझे आपने काइंडली भेज देने हैं। जी शिराज सुन रहे हैं जी? जी शिराज पहले जी मौजूद थे, अब गायब हो गए। यस चलें जी, सर। ये आपने शिराज को कन्वे कर देना है। जी शिराज, यस सर। यस सर। ठीक है, चलें ठीक है जी। सर कब थैंक यू तक सो भेजनी मच। है? जी कब तक भेजनी है? आप आज भेज दें, कल भेज दें। हाँ जी, ठीक है, जिस कल वक्त तक मुनासिब भेजना है। समझे। ठीक है, चलें, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।